Good. Okay. Look at question 2, page 14. From the transportation problem, find optimal solution by modified distribution method. What's the first step? What's the first step? To check whether it is balanced or not. Come on, check. Demand. Not demand, sorry, capacity. कितना कैपेसिटी है? 70, 60, 90. टोटल कितना है? 220. करेक्ट. डिमांड D1, D2, D3, D4. डिमांड कितना है? 60, 40, 60, 20. टोटल करो कितना आया? सर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, है ना? देख के मालूम पड़ता है आपको. आप कितने अच्छे हो. वहां जाके कोने में बैठ गए. यू नो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो जाके बैठना. किसी किसी को आता है, करेगा क्या बैठे बैठे यहाँ पे? टोटल कितना है? यस. अब ठीक है, और करूँ और? अब ठीक है. अब सुनो, या कितना है बताओ? इज इट बैलेंस्ड? तो क्या करने का? जहां कम है, वेर एवर द नंबर इज लेस, डिमांड इज लेस ना, मेक डमी डिमांड ऑफ 40. वाई 40 रे? टू मेक इट इक्वल टू व्हाट? टू मेक इट इक्वल टू 220. Am I clear with this? Are we understanding this or not? Okay. After that, what's the next step? IFS by VAM. IFS by VAM. What is the cost? 10, 7, 6, 12, 3, 6, 9, 7, 9, 6, 7, 11. ये डमी है ना, तो क्या कॉस्ट आएगा उसका? 0 कॉस्ट आएगा. Am I clear with this? So what's the capacity? 70, 60, 90. डिमांड कितना है? 60, 40, 60, 20, 40. टोटल दोनों का कितना है? 220. क्लियर? What's the next step? Penalties. 0 minus 6, 0 minus 3, I mean 3 minus 0, and then 6 minus 0. कितना? Then 7 minus 6, 6 minus 3, 9 minus 7, 7 minus 6, 0 minus 0. Now before I go ahead, after you have put dummy to balance the problem,
treat dummy as any other row or column. There is no separate treatment for dummy. That means while testing degeneracy and all those things, you will consider this also. Am I clear with this or not? समझ में आ रहा है हर एक को? Okay, the problem now is there's a tie in highest penalty. Correct? So what to do in this case? Go for lower cost. Go for what? नहीं समझ में आया ना? In this 6, if you select this 6, what's the lowest cost? 0. Correct? If you select this 6, what's the lowest cost? 0. So even lowest cost में tie है इधर. Even lowest cost has a tie. Suppose ये होता 0 और ये होता 3 यहाँ पे. Suppose कहीं 3 होता, तो हम लोग क्या select करते? 0. Are we clear? समझ में आ रहा है क्या? ये 6 है, ये भी 6 है. ये 6 में लोएस्ट कॉस्ट 0. ये सपोज 6 में कोई और लोएस्ट कॉस्ट होता, से 2 रुपीज 3 रुपीज होता लोएस्ट कॉस्ट, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? आर वी क्लियर? बट यहां पर हो क्या रहा है प्रॉब्लम? दिस 6 हैज लोएस्ट कॉस्ट 0, दिस 6 हैज लोएस्ट कॉस्ट 0. आर वी क्लियर? सो व्हाट विल यू डू? Out of these two, we will select that cell where we can allocate more units. अरे why more units? Cost में तो you want to reduce the cost, but at the least cost, if I give you an option to transport 50 units or 80 units, what would you like to do? 80 ना? or 50? 80. So if cost also has a tie, then go for what? Higher possible allocation. Sir, how to test it? अरे very easy. यहां पर आप कितना allocate कर सकते हो? 40 or 70, whichever is lower. You can allocate how many units here? 40. यहां पे कितना कर सकते हो? 40 और 90, whichever is lower. कितना? 40. यहां भी टाई है. समझ में आ रहा है? सपोज करो यहाँ 90 नहीं होता, यहाँ 90 के बजाय होता, सपोज एग्जांपल के तौर पे यहाँ 90 के बजाय होता है, सपोज 30 होता है यहाँ पे, तो हाउ मच कैन यू एलोकेट हियर? 30. एंड हाउ मच कैन यू एलोकेट हियर? 40. तो दिस विंस. आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बट यहां ऐसा है तो नहीं, यहां ऐसा नहीं है ना. यहां पर तो क्या है? यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, तो क्या करने का? देन बोथ द सेल्स आर इक्वली गुड. यू कैन सिलेक्ट एनी सेल. एम आई क्लियर? बोथ द सेल्स आर इक्वली गुड. यू कैन सिलेक्ट एनी सेल. राइट डाउन दीज रूल्स समवेयर. Give heading. Don't, not in the sum. Don't break the flow of the question. Somewhere else in your books write rules of tie in WAM. Rules of tie in WAM. उसमें number 1. Number 1. If there is a tie in highest penalty, if there is a tie in highest penalty, select row or column with least cost. Select row or column with what? Least cost. यानी कि तो दोनों रोज के अंदर ही है ना, तो whichever row is giving you least cost, select that. Second rule लिखो, if there is a tie in least cost also, if there is a tie in least cost also, if there is a tie in least cost also, select the cell with a higher possible allocation. Select the cell with higher possible allocation. Select the cell with higher possible allocation. लिखा? Third rule लिखो, if there is a tie in higher possible allocation also, if there is a tie in higher possible allocation also,
select any cell. Select any cell. Are we clear? I am selecting this. Clear? So how much can you allocate here? 40. Correct? One second. How much can you allocate? 40. तो ये उसके after this allocation of 40, this will become 0. This will become how much? 50 ना? अरे yes. तो this became 0. Cancel it. समझ में आया? Then again penalties. This time ignore it. Why? डमी है इसके लिए. नो रे, कैंसिल हो गया इसीलिए. समझा क्या? 6 9 कितना आएगा? 3 7 कितना आएगा? 6 6 7 6 6 3 7 9 7 6. What's the highest penalty? Lowest cost 3. You can allocate lower of 2, which is 40. समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है तुम लोगों को? ये समझ में आ रहा है ना? वापस पेनल्टीज. थ्री इधर, 1 इधर, 2 इधर, 1 कैंसल. वापस टाई आ गया. 3 और 3 हाईएस्ट में टाई है ना? 3 और 3. 3 लोअर कॉस्ट 6, 3 लोअर कॉस्ट 6. यहां भी टाई है. अरे है ना? बट दिस 6 यू कैन allocate how much? 50. 60 or 50, whichever is lower. 50, yes or no? And this 60 you can allocate how much? 70 or 20, whichever is lower. 20. So who wins in tie? This 6 wins na? Are we clear? So you will select this. कितना आ जाएगा इधर? 50. This will become 10. This will become 0. This will get cancelled. This row will get cancelled this time, huh? Why? Because the row became 0, na? That's why. Are we clear? Then again penalties. वापस टाई हो गया. देखो ये 3 है और ये भी 3 है. दिखता है टाई. अरे हाईएस्ट 3 है ना, और 2 बार आ रहा है 3. टाई हो गया ना? अरे यस और नो? तो क्या करने का? अप्लाई द रूल ऑफ टाई. दिस 3 लोएस्ट कॉस्ट इज 7. दिस 3 लोएस्ट कॉस्ट इज 6. सो दिस 3 विंस. यस और नो? सो विल सेलेक्ट दिस. आर वी क्लियर? कितना आ गया? 20. वाई 20 रे? 70 20 विच एवर इज लोअर ना? अरे करेक्ट. उसके बाद में ये 0 हो गया. कैंसिल कर देने का इसको. फिर से पेनल्टी आएगा. क्यों? बिकॉज देर आर 2 कॉलम्स एंड 2 रोज रिमेनिंग. 10 9 1 7 7 0. ये तो कैंसल्ड है. ये 3 ये कैंसल्ड है. यहाँ 2 आएगा. ये कैंसल हो चुका है. ये भी कैंसल हो चुका है. 3 is highest, 7 is lowest. You can allocate 10 here. After that this becomes 0, तो cancel कर देने का इसको. Now only 1 column is remaining. Yes or no? तो stop giving penalties. यहाँ कितना आएगा? 50 60 whichever is lower. 50 आएगा. Are we clear? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0. फिर बच गया सिर्फ ये 7. ये भी 10 है, ये भी 10 है. यहाँ 10 आ जाएगा. Do we understand this? Do we understand this or not? मैडम समझ में आ गया? Okay.
तो ये आपका वैम है। वैम के बाद क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं वैम के बाद? टेस्ट फॉर डिजेनेरेसी। तो टेस्ट फॉर डिजेनेरेसी, count actual allocations, count them 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? देन काउंट m प्लस n माइनस 1। am कितना है इधर? 3 रोज। n कितना है? 5। सब एक तो डमी है, डमी को नॉर्मल रो कॉलम लेने का। अभी क्लियर? माइनस 1 कितना होता है? 7। आर दे बोथ इक्वल? दे बोथ आर इक्वल ना, देयरफॉर देयर इज नो डिजेनेरेसी। क्लियर विद दिस? समझ में सबको आया? अभी कॉपी करते बैठो मत, डोंट कॉपी नाउ। लेट मी कंप्लीट द सम फर्स्ट, देन यू कैन टेक अ फोटो और वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है? What is the next step? Test for optimality by Modi method. कमेंट बोलोगे आया करके? नहीं आया, कोई नहीं आया, मेरे को भूत दिख रहे। अरे मैं क्या कर रहा हूं, जो पहले बनाया था ना मैट्रिक्स ऊपर, उसी को कॉपी किया मैंने नीचे। आई होप समझ में आ गया रहेगा आपको। क्लियर? ये देखिए, इट इज नॉट डिजेनरेट ना, तो व्हाट आर टू इक्वेशन वी यूज? क्या? कॉस्ट इक्वल टू u प्लस v, देयरफॉर v इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस u and u is equal to cost minus v. Apply these two equations. जीरो 6 आएगा, 9 आएगा। अब देखो, इन सेकेंड रो आई कांट यूज दीज टू बिकॉज बोथ आर मिसिंग, v and u, but I can use this 7 ना। What is 7 minus 9? 7 minus, what is 7 minus 9? Minus 2, not 2। जो 2 बोला हुआ गधा है, समझे क्या? तुम लोगों को बेसिक स्कूल का मैथमेटिक्स भी नहीं आता, शर्म करो। अरे इट इज कॉस्ट माइनस वी ना, कॉस्ट माइनस वी है ना, उल्टा मत कर देना। इट्स ऑलवेज कॉस्ट माइनस वी। एम आई क्लियर? देन 3 माइनस माइनस 2 कितना होता है? 5। ऐड होता है ना दोनों। 7 माइनस माइनस 2 कितना होगा? 9। समझ में आया? नाउ यू कैन कम टू थर्ड रो। 6 माइनस 9,
कम इन। 6 माइनस 9 कितना होता है? -3। 0 माइनस -3 कितना होता है? अरे 0 माइनस -3 कितना होता है? 3। और तुम 4 लोग को अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तुम लोग बहुत लेट आए। यू कैन वॉक आउट इफ यू वांट, आई हैव नो इश्यूज। समझे क्या? यहां देखो, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? डेल्टा इज इक्वल टू करेक्ट। अरे बराबर के नहीं, समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? कुछ नया कर रहे हैं क्या हम लोग? कुछ नया कर रहे क्या? डिड आई डू एनी न्यू स्टेप्स टुडे? ये देखो, 10 माइनस 0 माइनस 9 कितना होता है? +1। अरे यस। 0 माइनस 0 माइनस 3, लो कितना आ गया? अरे कितना आ गया? -3 आ गया। लग गई वाट? समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे देखो, 7 माइनस -2 कितना होता है? 9। 9 माइनस 6 कितना होता है? +3। सही गलत? अरे बराबर ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 0 माइनस -2 -3, ये देखो मैं लिखता हूं यहां पे, देखो 0 माइनस -2 -3 कितना हो जाएगा? 0 + 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। एक और नेगेटिव सर? अरे हाँ भाई, हो सकता है। यू कैन हैव मल्टीपल नेगेटिव्स। एम आई क्लियर विद दिस? नीचे आ जाओ, 6 माइनस -3 कितना होता है? 9। 9 माइनस 5 +4। 9 माइनस -3 कितना होता है? 12। 12 माइनस 9 +3। 11 माइनस -9, सॉरी 11 माइनस -3 14। 14 माइनस 6 +8। अरे यस। क्या? एज देयर इज नेगेटिव डेल्टा, optimality has not reached। अरे यस और नो? तो अब डेल्टा भी डबल डबल नेगेटिव है, तो क्या करने का? अरे डबल डबल नेगेटिव डेल्टा है तो क्या करने का? व्हाट? व्हाट 12? D2। अच्छा, वो बनाया नहीं हमने, बराबर। चलो पॉजिटिव ही है। 12 माइनस 0 माइनस 5 7 है ना? सुनो इधर, अब डेल्टा 2 बार नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? आंसर बताओ। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? बोलो। हाँ, अरे वो बात बराबर है, बट टू रिपीट दैट आई नीड टू मेक अ लूप ना। तो लूप कहां से बनाऊं? डबल डबल नेगेटिव है। समझ में आ रहा मेरा क्वेश्चन क्या है? आप पे आंसर दो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ व्हाट? कॉस्ट। सो डेल्टा इज प्लस, दैट मीन्स योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। इफ डेल्टा इज माइनस, दैट मीन्स योर कॉस्ट इज
reducing. Correct or not? तो no, in any loop, listen, in any loop you will only have one delta, because at the other corners you will have allocations. Arey, yes or no? So how can you have multiple delta negative in a loop? Not possible. Clear? तो मैं कुछ बोल रहा था, keep quiet and pay attention. Delta means change in cost. Delta positive means cost will increase. Delta negative means cost will reduce. Given a choice that you want to save 3 rupees or 1 rupee, what do you want to save? 3 ना? तो लूप तो एक ही जगह से बनेगा, या तो -3 से या -1 से, दोनों जगह से नहीं बनेगा. तो कहां से बनाऊं लूप? -3 से बनाऊंगा मैं. Why? I want to save 3 rupees given a choice, not 1 rupee. So हमने ये सम के अंदर पहले किया रूल ऑफ टाई इन वैम, फिर रूल ऑफ टाई इन मोडी मेथड. If there is a tie in, so if there are multiple delta negatives, then select that delta where you have a higher negative. Clear? सर वहां भी टाई है तो क्या करने का? यानी कि दो डेल्टा है, दोनों -3 है. पॉसिबल है ना? Then make both the loops, and wherever you get higher change, select that loop. Why? दोनों जगह डेल्टा नेगेटिव क्या है? -3 सपोज. तो बोथ प्लेसेस यू कैन सेव 3 rupees 3 rupees. You made the loop. In the first loop you can move 50 units. That means you will save 3 rupees per unit for 50 units. In second loop you can move 80 units. You know how the goods move, na? You can save 3 rupees per unit for 80 units. What do you want to save 3 rupees per unit for? 50 or 80? 80 na? So make both the loops, and wherever you can make higher change, select that loop. Are we clear with this? समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया, टेंशन लेने का नहीं. इतना टफ सम कभी एग्जाम में आएगा नहीं कि आपको डेल्टा नेगेटिव आपको टाई आ जाए. वेरी रेयरली इट हैपेंस. आर वी क्लियर? बट फिलहाल के लिए व्हाट विल आई सिलेक्ट, दिस और दिस? आई विल सिलेक्ट दिस. -3 से आई विल मेक अ लूप. एम आई क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, लेट अस स्टार्ट. अब लूप भी इतना आसान नहीं बनेगा इधर. लूप का रूल क्या होता है? चलो, आई हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग मल्टीपल कलर पेन्स, सो आई विल टेक एडवांटेज. यहां देखो, लूप क्या होता है? लूप यहां से शुरू होगा लूप, और वापस यहीं पे आना चाहिए. इट शुड कम बैक हियर. करेक्ट? तो इफ आई गो हियर एंड आई टेक अ टर्न, कैन आई कम बैक हियर? कैसे आऊंगा वापस? कोई तरीका ही नहीं है. तो डोंट टेक अ टर्न फ्रॉम हियर, गो अहेड. यहां से आपको टर्न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई यूनिट्स ही नहीं है. तो टर्न तो लेना ही पड़ेगा यहां से. सर तो आ जाओ वापस. अरे कैसे आऊं रे? नहीं आ पाऊंगा वापस. तो यहां टर्न नहीं ले सकता. आई टेक अ ऑपोजिट टर्न. सर चले जाओ ऊपर. अरे इतनी जल्दी कैसे जाऊं ऊपर यार? अभी तो इतना उम्र नहीं हुआ मेरा. ये देखो इधर, यहां देखो. इफ आई गो ऑन टॉप अगेन आई एम स्टक. करेक्ट? अरे यस और नो? तो इफ आई कम डाउन अगेन आई एम स्टक. तो आई विल नॉट टेक अ टर्न फ्रॉम हियर, आई विल गो अहेड. सर गो ऑन टॉप, यहां पे आ जाओ. आई कांट, आई विल बी स्टक, आई विल कम डाउन. समझा? I have no other option but to come here, because I dead end. Yeah, इस तरफ it is dead end. So I have no other option but to come like this. अरे yes, then I can go on top again. सर ये कैसा लूप बन गया? इसको बोलते हैं 6 point loop. क्या बोलते हैं इसको? We call it 6 point loop. Am I clear with this? Do you understand this? Now don't get confused like this. Don't make your own mathematical rules. What? Okay, loop has to go through all the allocation. That is the rule. ऐसा कोई rule नहीं है.
सर बट लास्ट सम में ऐसा हुआ था सर, कहाँ गया लास्ट सम? इट वेंट थ्रू ऑल द एलोकेशन सर, इट टच्ड एवरी एलोकेशन। अरे भाई टच किसको किया, मुझे क्या करने का है, वो तो सेम रहा ना लास्ट में। आई मेड चेंज ओनली अदर एजेस, यस और नो, याद आ रहा है क्या लास्ट सम? वैसे इधर इवन हियर आई मेक चेंज ओनली एट द एजेस, दिस 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 दिस। It is passing through these two, it's a coincidence and does not make any effect on the final answer, because even when after the change they both will remain same ना, because change कहाँ होता है, सिर्फ corners पे होता है ना। तो ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि the loop has to go through all the allocations, वो जा रहा है तो एक mere coincidence है। अभी क्लियर? तो देखो इधर, तो यहां क्या हो जाएगा, what will you write here? यहां क्या लिखेंगे अपन? प्लस, यू वांट यूनिट्स हियर ना, दिख रहा है क्या, थोड़ा लाइट है क्या? विल राइट प्लस हियर। इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा, ये है ना, यहां क्या आ जाएगा? सर बट आई डोंट वांट टू गो हियर, ये भी तो ऑपोजिट है, चलेगा तो यहां लिख ले माइनस, वहां मत जा, घूम फिर के उधर ही आना है तेरे को। कैसे बताया क्या, देखो इधर आपने क्या किया, आपने यहां नहीं लिखा, आपने यहां लिख दिया। अभी क्लियर? यू रोट इट हियर माइनस, ऑपोजिट साइड प्लस, ऑपोजिट साइड माइनस, ऑपोजिट साइड प्लस, तो यहां पे क्या आ गया वापस, अरे घूम फिर के कहानी वही हो गया ना। अगर आप ऐसे आते क्या होता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बात तो वही पड़ती घूम फिर के। क्लियर विद दिस? नाउ on in this loop there will be 3 negative 3 positive because it's a 6 point loop ना। तो look at the negative side, 1 2 3, look at the negative side. Hey, what is the lowest number on the negative side? जल्दी बताओ, lowest quantity on the negative side, quantity सर 0, अरे वो तो cost है रे गधे, quantity बता, 40 50 और 10, what is the lowest? 10 is the lowest, yes or no? तो change is equal to 10। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? कल क्या किया था हम लोगों ने 4 पॉइंट लूप में, नेगेटिव साइड का लोअर नंबर क्या था बताओ? अरे यस्टरडेज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव साइड लोएस्ट यूनिट्स 50, that was the change ना। अरे why? Because from negative corner of the loop you will take out the units and on the positive corner you will dump the units, yes or no? But while taking out from negative side, can you take out 50 from all the sides? No, you cannot, because यहाँ तो है ही 10, यहाँ तो है ही 40, तो out of 40 how can you take 50 out? जेब में है ही, अपने ट्रक में है ही 40 आईफोन्स, और मैं आपको बोल दूं ला 50 दे दे मेरे को, पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है क्या? आपके ट्रक में 40 है, मैं बोलता हूं 50 दे दे, नहीं हो पॉसिबल है। बट सर मैंने 40 लिया तो ठीक है, मेरे ट्रक में कितना आइटम है 10, मैं कितना मांग रहा हूं आपसे 40, पॉसिबल है क्या? आप यहां से 40 माइनस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या, बट इफ यू गो बाय द लोएस्ट यूनिट्स कैन यू माइनस 10 फ्रॉम हियर? यस। कितना है इधर, दिखता है क्या? कितना यूनिट्स है इधर बताओ, कितना है? 50 है ना, दिख रहा है हर एक को? क्या और जूम करूं? दिखता है हर एक को 50 है उधर। यहां कितना है? 40 है। तो आउट ऑफ 50 कैन यू टेक आउट 10? आउट ऑफ 40 यू कैन यू टेक आउट 10? दैट इज व्हाई गो ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द लूप, लुक एट द लोएस्ट units on the negative side. Are we clear? And that becomes your change. समझ में आया why it is like this? हर एक का आंसर, हर एक y का आंसर है इधर। अरे हर एक को समझ में आ रहा है? तो what are you waiting for? Apply this change, make the loop again, apply the change,
ओके, पे अटेंशन यार, हरे को दिख रहा है ना ये? यहां देखिए प्लीज, गो रो वाइज, ये एलोकेशन ईयर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नो एलोकेशन, यहाँ पे नो एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन है ना। कितना यूनिट्स है? 50। चेंज क्या है? 10। और ये कौन सा है? यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? समझा? व्हाट्स द नेक्स्ट प्लेस? गो रो वाइज, स्टे इन द सेम रो। यहाँ पे कितना एलोकेशन है? कुछ चेंज है क्या? अरे कुछ चेंज है क्या? तो राइट द सेम थिंग। आर वी क्लियर? यहां पर कुछ चेंज है क्या? यस, प्लस करना है। देयर आर हाउ मेनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हियर? नथिंग, 0। तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? गो टू सेकेंड रो। यहां कितना यूनिट्स है? 10। क्या करना है? माइनस। कितना माइनस करना है? 10। तो दिस विल बिकम अनएलोकेटेड, तो लीव इट एज अनएलोकेटेड। आर वी क्लियर विद दिस? यहां कितना है? 40। कुछ चेंज है क्या इधर? तो ये ऐसे आ जाएगा। आर वी क्लियर? यहां पे कितना है? 10। और ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 20। नो एलोकेशन, नो एलोकेशन। नीचे आ जाओ अभी, थर्ड। 50 प्लस 10 करना है, कितना हो गया? और यहां पर नो एलोकेशन, नो एलोकेशन, नो एलोकेशन। 40 माइनस 10 करना है, तो कितना हो गया? आर वी क्लियर? तो अभी टेस्ट कर लो, कहीं गलती तो नहीं हो रहा। सर टेस्ट कैसे करें? अरे व्हाट इज 40 प्लस 20 प्लस 10? व्हाट इज 40 प्लस 20? व्हाट इज 60 प्लस 30? 60 चाहिए, दैट यू हैव। 40 चाहिए, दैट यू हैव। व्हाट इज 40 प्लस 20? 20 चाहिए, वो है। 40 चाहिए, इज दैट यू, डू यू हैव दैट? यस। दैट मीन्स यू हैव नॉट डिस्टर्ब द डिमांड सप्लाई सिचुएशन, एंड इवन देन यू हैव मेड द चेंज। एंड दैट वाज द होल यूज ऑफ द लूप। लूप का मतलब क्या था? और वही तो मतलब था लूप का, कि you make the change in such a way that you do not disturb demand supply. Are we clear? So again, what's the next step? And what's the next step? Test for degeneracy. चलो देखते हैं. Hey, what test for degeneracy? Count allocations. काउंट एलोकेशंस, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना? काउंट m प्लस n माइनस 1। देयर हाउ मेनी m? 3। हाउ मेनी n? 5 माइनस 1 कितना हो गया? आर दे बोथ इक्वल? देयरफॉर देयर इज नो डिजेनरेसी। आर वी क्लियर? हर एक को समझ में आया क्या? देन व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट बाय अप्लाइंग टू इक्वेशंस। चलो अप्लाई करेंगे। 0, 0 माइनस 0, 6 माइनस 0, 9 माइनस 0। सेकेंड रो में आ जाओ। यू कैन यूज दिस, बोथ आर मिसिंग ना, बट कैन यू यूज दिस? 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -2। 3 माइनस -2 कितना हो जाएगा? 5। नीचे आ जाओ। यू कैन यूज दिस, बोथ आर मिसिंग, बट कैन यू यूज दिस? यस। 0 माइनस 0 इज 0, एंड देन 6 माइनस 0 इज, समझता है हर एक को? आर वी गेटिंग दिस? देन अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन।
क्या डेल्टा इज इक्वल टू 10 minus 0 minus 6 plus 4, 12 minus 0 minus 5 plus 7. Are yes or no? Then there is no other unallocated. Come to second row. 7 minus minus 2, 9. 9 minus 6 plus 3. 7 minus minus 2, 9. 9 minus 6 plus 3. 0 minus minus 2 कितना होता है? 2 minus 0 is plus 2. अरे करेक्ट. 6 minus 0 minus 5 plus 1. 9 minus 0 कितना होता है? 9. वापस माइनस 9 कितना होगा? 0. तो इट इज डेल्टा 0. समझा? इट इज विच डेल्टा? नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव. व्हाट डेल्टा? 0 डेल्टा. आर वी क्लियर विद दिस? ओए कोई बोर्ड पे देखता ही नहीं है. यहां देखो बोर्ड पे डेल्टा कितना है? 0. इसकी भी कहानी है अपनी, एक बताएंगे बाद में. 11 माइनस 0 क्या? 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा? प्लस 5. आर यू हैविंग एनी नेगेटिव डेल्टा? नो. दैट मीन्स व्हाट? ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड. अगर डेल्टा नेगेटिव होता तो क्या करते? ऑप्टिमैलिटी इज नॉट रीच्ड. फिर से लूप बनाओ, फिर से आंसर निकालो. समझे क्या? बट अभी वो अपना नसीब अच्छा था, तो क्या? एज there is no negative delta, optimality is reached. Correct? तो last step, total cost 9 into 40, 6 into 20, 0 into 10, 3 into 40, 7 into 20, and 6 into 60, and last 0 into 30. कितना आ रहा है बताओ? जीटी करना आता है ना? अरे जीटी करना आता है कि नहीं? कितना आ रहा है बोलो? $1,100. Answer is over. But story is not over. किसका स्टोरी रे? डेल्टा 0 जो आया उसका स्टोरी. मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन आई आस्क्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? चेंज इन कॉस्ट. अप्लाइंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेल्टा बीइंग चेंज इन कॉस्ट, अप्लाई दिस. द कॉस्ट विल इंक्रीज, द कॉस्ट विल इंक्रीज, द कॉस्ट विल इंक्रीज, द कॉस्ट विल इंक्रीज, द कॉस्ट विल इंक्रीज. यस और नो? The cost will increase, but the cost will remain same here. In this matrix, is there any scope to reduce the cost? Is there? No. That means it is optimal. समझ में आता है? But is there a scope to have an allocation here with same cost, with no change in cost? Delta being 0 means what? No change in cost. That means if I have an allocation here, the cost will not change. So is there a scope to have another combination of allocations with no change in cost, the cost remaining same? Yes. If I allocate goods here, इसको बोलते हैं alt optima. जो लोग आए थे ना असाइनमेंट में, याद आ रहा है उनको? alt optima in assignment. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? alt optima in transportation. समझे क्या? जो बोल रहा हूं उसको सुनो और तभी करने का एग्जाम में जब ये बोला हो. इज द गिवन सॉल्यूशन यूनिक? इफ नो, शो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. या फिर ऐसा बोलेंगे, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल? इफ यस, शो द सेम. तो ही करने का जो बताऊंगा अभी जो. क्लियर? समझ में आया क्या? तो अपन एक्चुअली में सॉल्व करें इसको, उसके पहले टेल मी
In transportation, when will you have alternative optimal solution? In transportation, when there is no negative delta, that's the first condition. Because if there is delta negative, that means you can reduce the cost. It is not optimal. Yes or no? So what's the first condition? There is no negative delta. And what is second condition? There is a zero delta. Are we clear with this? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यानी कि यू विल हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल इन ट्रांसपोर्टेशन. आर वी क्लियर? तो हेडिंग देने का ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा हेडिंग देने का. लिखो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा लिखो. लिखा? और वहां लिखो इन ट्रांसपोर्टेशन वी विल हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल इफ both the conditions given below are satisfied. We will have alternative optimal solution available if both the conditions given below are satisfied. उसमें लिखो नंबर 1, there is no negative delta. There is no negative delta. There is no negative delta after 9:30. Close the door while going. करते हैं ना क्या? There is no negative delta and ऐसा लिखो and there is a zero delta. There is a zero delta. अब एग्जाम में आया 5 मार्क का शॉर्ट नोट, ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन, ये इतना लिख के आओगे बस, तो 2 मार्क्स भी नहीं आएगा. तो हाउ टू राइट? यूज योर ब्रेन. हाउ टू राइट? अरे फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेल्टा. क्या? in transportation, while doing optimality test by Modi method, if we get delta means change in cost. So if we get delta positive, it means the cost will increase. If we get delta negative, it means the cost will reduce. If we get delta zero, that means the cost will remain unchanged. Therefore, in transportation, we have alternative optimal solution available if there is no negative delta. This means that there is no scope to reduce the cost, and at the same time we have a zero delta available, which means that we have another solution available with same cost. Full stop. इतना लिखा, फिर change paragraph. Alternative optimal solution is shown. Alternative optimal solution is shown by making a loop from zero delta and by making a change and calculating the cost again. समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे how will I show that? How will I prove that if I allocate goods here, the cost won't change? How will I prove it? How will I prove that if you jump from here, you will die? How will I prove it? I will throw you down. If you die, hence proved. समझा क्या? So how will I prove that the cost will remain unchanged here if I make allocation here? अरे I'll actually make an allocation here. समझ में आता है क्या? And calculate the cost again. If the cost remains same as this 1100, my answer is proved that yes, there is alternative optimal solution available. Are we clear with this or not? So let us do that now. Let us make a loop from here.
सर बट लूप तो बनता है डेल्टा नेगेटिव से, वो कब बनता है? जब अपने को ऑप्टिमल आंसर अवेलेबल नहीं हो एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यू हैव ऑल द ऑप्टिमा अवेलेबल, हाउ डू यू शो इट? बाय मेकिंग अ लूप फ्रॉम वेयर डेल्टा इज 0. आर वी क्लियर? हाउ विल यू मेक अ लूप फ्रॉम हियर रे? बताओ, जल्दी बताओ. हाउ विल यू मेक अ लूप फ्रॉम हियर? रुको एक मिनट. यहां से लूप बनेगा ऐसा. क्या हुआ बोलो? यहां से मैंने क्या बोला? देर इज नो नीड फॉर द लूप टू गो थ्रू ऑल द एलोकेशन. देर इज नो नीड. गेट द लॉजिक ऑफ द लूप. लूप का लॉजिक क्या होता है बताओ फटाफट. अरे लूप का लॉजिक क्या होता है, कौन बताएगा? वाई डू वी मेक अ लूप? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था ये बात. ये बात पहले आपको एक्सप्लेन हो चुकी है कि वाई डू वी मेक अ लूप. कम ऑन टेल मी, वाई डू वी मेक अ लूप? Come on, come on, come on. Tell me, why do we make a loop? Come on, yeah. Don't prove that I am wasting my time with you guys. Come on. जल्दी बताओ. यहाँ कितना कॉस्ट था? 11 था ना, और यहाँ 0 था, यहाँ 30 था, और डेल्टा पॉजिटिव था इधर, और यहाँ 20 था. नाउ टेल मी, व्हाई डू वी मेक अ लूप? टेल मी, व्हाई डू वी मेक अ लूप? अरे लूप ensures that after the change the demand supply does not exceed or go down total amount. Yes or no? The total amount, this total remains equal to 70. Yes or no? The loop ensures that. So I have to make an allocation here ensuring that none of these are either exceeded or reduced. समझ में आ रहा है? That's the whole purpose of making the loop. रट्टा मत मारो, समझ के लो. बट कितना भी समझाओ तुम लोग, अगले ध्यान लेक्चर आंसर देने का नहीं तुम लोगों को जो पूछेगा. समझ में आता है क्या? तो यहां देखो, चलो, why will I make the loop? The loop I'll make to ensure that I make an allocation here, but at the same time the total is not disturbed. Are we clear? How will I do that? A logical answer is, if I make an allocation here, this will, I'll take out the units from here. I will make allocation here. I'll take it out from here. हो गया. Demand supply satisfied. नहीं समझ में आया ना? तो रट्टा मारो, जाने दो. How do you make a loop? How do you make a loop? Loop का rule क्या होता है? You start from the place where delta is 0 or negative. Yes or no? And you take a turn from allocated cell in such a way that you can come back here. Yes or no? So do one thing. Try going here. You will be stuck. Try going here and take a turn. This side will be stuck. If you go on this side again, you will be stuck. So go on top. Try coming here. यहाँ पे आओ. यहाँ तो जाएंगे, again you will be stuck. So come here. If you come down, you will be again stuck. So go ahead. Come down. Come here. अब समझ में आया क्या? रट्टा समझ में आया? रट्टा बराबर है कि नहीं? इफ यू ओपन एनी OR बुक, वहां पे ये लिखा रहेगा कि लूप कैसे बनाते हैं. यू स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर डेल्टा इज 0 और नेगेटिव. यू टेक अ टर्न फ्रॉम allocated cells in such a way that you can come back to the origin. Loop is made. सब ऐसे ही पढ़ते हैं, तो आप भी ऐसे पढ़ो. बराबर है कि नहीं है? सबको नौकरी मिलती है 10,000 महीने की, आपको भी उतने की मिलेगी, क्योंकि सब लोग दिमाग यूज नहीं करते. आप भी मत करो. बराबर है कि नहीं है? चलो आ जाओ. कई लोगों को अच्छा लगता है जिंदगी में ओनली 10,000 पर मंथ कमाने का. सर हर कोई थोड़ा कमाएगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ. हमको नहीं कमाने का उतना. वी डोंट लाइक मनी सर.
So we like money, but we don't want to use our brain. Then you will stay where you are. Just thank your parents. They use their brains. Or should I say they did not? Because you were born, ना? देखो चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो चलो. तो अब क्या होएगा? I want units here, ना? तो I'll write what? Plus. Opposite side. Opposite side. Opposite side. तो थोड़ी देर पहले मैंने फारसी बोली थी क्या कि आप यहाँ गुड डालोगे तो यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालो तो यहाँ डालोगे, यहाँ निकालोगे, बोला था ना थोड़ी देर पहले, बिना लूप बनाए कहा था ना. एंड दिस विल एंश्योर दैट दिस टोटल विल रिमेन सेम. यस और नो? तो क्या पहले फारसी बोल रहा था मैं, जो बोल रहे समझ में नहीं आया. बट क्या है ना, इफ यू टॉक अबाउट गिविंग ज्ञान टू पीपल, दे विल रिजेक्ट इट. बट इफ यू टेल देम टू rectify steps, they'll accept it. That's how people are made biologically. So no problem. We'll serve our audience what they want. They want crap, we'll give them crap. चलो, वही तो होता है आजकल सलमान खान के मूवीज में. और होता क्या है, पब्लिक को क्रैप चाहिए हर एक ईद और छुट्टी के टाइम पे. तो ही सर्व्स यू क्रैप एंड वी ग्लैडली एक्सेप्ट इट बाय गिविंग हिम 100 crores 200 crores फॉर एवरी मूवी. अटर क्रैप एवरी मूवी. मेरे को कोई बोले ना पैसा लेके देख ले, मैं तब भी नहीं देखूं. मैं टॉरेंट से मेरे पास डाउनलोड करके देखता. बोलो काय को बैंडविड्थ वेस्ट करने का, समझिए क्या. चलो देखो इधर, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया कि मैंने बनाया क्यों यहां से. आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट कि अगर यहां से एलोकेशन हुआ तो मेरा कॉस्ट सेम रहेगा. समझिए क्या? तो लुक एट द नेगेटिव साइड. व्हाट इज द चेंज? नेगेटिव साइड का लोअर वैल्यू क्या है सर? 0 है. देखो 0 ही आएगा बेटा. 30 बोलने का ना, 30 आएगा ना. तो लिखो चेंज इक्वल टू, आपने अपने बुक में लिखा रहेगा ऑल्ट ऑप्टिमा, वो सब लिखा रहेगा. बात बराबर है कि नहीं है? वहां लिखो चेंज इक्वल टू व्हाट. समझा? अरे ये बनाया था ना आधा पहले मेन आंसर में, वहां से लूप बनाया. सुन रहे हैं क्या हम लोग? आपने पहले कॉपी किया रहेगा ये वाला मैट्रिक्स मेन आंसर में, वहां से लूप बनाओ. ऐसा लूप बनाया, वहां लिखो प्लस माइनस लिखा. नेगेटिव साइड पे देखो कितना अमाउंट है, लोअर वैल्यू किधर है? 30 है. देखो चेंज 30 आएगा. समझ में आया? लेट मी मेक द मैट्रिक्स अगेन. yes, only if they ask. That's why I clarified. If they ask you, is there any alt optima available? If yes, show the same. Only then do it. Otherwise, don't waste your time. सपोज करो एग्जाम में पूछा इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल, इफ यस शो द सेम. और आपने एग्जाम में सम सॉल्व किया और आपको डेल्टा सब पॉजिटिव आ गया पर डेल्टा 0 नहीं आया, तो क्या लिखोगे? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल. समझे क्या? ये लिख के छोड़ दोगे. समझे क्या मतलब सर? अरे मतलब ये है कि अगर पूछा है तो जरूरी नहीं कि ऑल्ट ऑप्टिमा होना ही चाहिए. समझे क्या? इसका मतलब क्या कि एग्जाम में पूछा है कि ऑल्ट ऑप्टिमा है क्या और आपको डेल्टा 0 आ जाता है, सब पॉजिटिव आया और एक जगह पे क्या आ गया? 0 आ गया, तो यानी कि आपको ऑल्ट ऑप्टिमा आ गया. तो विल यू शो इट? यस. हाउ विल यू शो इट? लाइक आई एम डूइंग इट राइट नाउ. क्लियर विद दिस? तो अगेन गो ऑन टॉप, सी व्हाट आर द चेंजेस टू बी मेड. गो रो वाइज. 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20 में कुछ चेंज है क्या? 10 में कुछ चेंज है क्या? अरे यस. देन कम डाउन. कुछ चेंज है क्या 40 में?
कुछ चेंज है 40 में? नहीं है, एज इट इज। कुछ चेंज है 20 में? नहीं है, एज इट इज। यहां तो कुछ एलोकेशन है ही नहीं। यहां पे आओ, कुछ चेंज है क्या यहां पर? कुछ चेंज है क्या इधर? नहीं है, तो एज इट इज, नो एलोकेशन। यहां पे कुछ चेंज है क्या? अरे है ना, देयर आर हाउ मेनी यूनिट्स हियर? 0। वाई 0? डेल्टा में 0 है इसलिए। नो, तो चेंज इन कॉस्ट है रे। डू यू फाइंड एनी नंबर इन सर्कल हियर? नो, दैट मींस देयर आर नो यूनिट्स हियर। दैट मींस देयर आर नो यूनिट्स हियर। नो यूनिट्स प्लस 30 कितना हो जाता है? एंड ये यहां पे कुछ नहीं है, 30 minus 30, दिस विल बिकम अनएलोकेटेड। आर वी क्लियर? दिस विल बिकम व्हाट? अनएलोकेटेड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, थोड़ा गलती नहीं हुआ वेरीफाई कर लेने का। ये 70 है ना, टोटल कितना 70 है कि नहीं है? 60 है ना, टोटल 60 है कि नहीं है? 90 है, टोटल 60 90 है कि नहीं है? यहां पे कितना चाहिए? 60, वो उतना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, टोटल इज 60। यस, 20 40, यानी कि नॉट मेड अ मिस्टेक। अरे लूप एंश्योर्स कि डोंट मेक अ मिस्टेक। आर वी क्लियर? तो चलो यहां पे देखो अभी, व्हाट्स द नेक्स्ट टेस्ट? भूलना मत, टेस्ट फॉर डिजेनरेसी। टेस्ट फॉर डिजेनरेसी। उसमें काउंट द एलोकेशंस। Count the allocations. 7. Count m plus n minus 1. कितना आया? 7. Are they both equal? Therefore, there is no degeneracy. Clear? Then what is the next thing? Apply that. समझ में आया क्या किया मैंने? ये ten minus 0 minus 6. First I'll write it for अरे कौन है? बोतल तोड़ देना, कितनी बार गिराएगा? एक ही बोतल को 2 बार गिराया, 3 बार गिराया, आप तोड़ ही दे उसको। बहुत पैसा है तुम्हारे पेरेंट्स के पास। यहां देखो, चलो 10 minus 0 minus 6, 12 minus 0 minus 5, then 7 minus 2, then 7 minus 2, 7 minus to this, plus 2 ना, 6 minus 0 minus 5, plus 1, 11 minus 0 minus 6, plus 5, 0 minus 0 minus 0, लो एक और ऑल्ट ऑप्टिमा आ गया, वन मोर ऑल्ट ऑप्टिमा। सबका दिल बैठ गया, टेंशन लेने का नहीं। इसका ऑल्ट ऑप्टिमा मालूम है क्या है? दिस इज द ऑल्ट ऑप्टिमा, दिस द अर्लियर सॉल्यूशन। यानी कि क्या? अरे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहां देखो, चलो यहां पे देखो, एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड। दिखता था ये अपना मेन सॉल्यूशन था, इससे अपन बनाए ऑल्ट ऑप्टिमा, तो डेल्टा यहां पे नेगेटिव 0 आ गया ना वापस से। इफ यू मेक ऑल्ट ऑप्टिमा अगेन यू विल गेट दिस, इफ यू मेक ऑल्ट ऑप्टिमा अगेन यू विल गेट दिस, you make alt optima again you will get this, then you can keep playing tennis. बहुत टाइम है ना एग्जाम में, है ना? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, दैट मीन्स व्हाट? ऑल्ट ऑप्टिमा आ गया अपना, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? तो यहां ध्यान दो, क्या लिखेंगे इसके नीचे?
डू यू हैव डेल्टा नेगेटिव? नो. तो क्या लिखोगे? एज देयर इज नो नेगेटिव डेल्टा, optimality is reached. Clear? And then calculate what? Total cost. 9 into 10 plus 6 into 20 plus 0 into 40 plus 3 into 40 plus 7 into 20 plus 6 into 60 plus 9 into 30. 1 2 3 4 5 6 7. सबको ऐड करके आंसर निकालो. कितना आना चाहिए? 1100. नहीं आया तो आई शुड नॉट टीच OR. समझा? कितना आया? आया क्या 1100? मैं बोल रहा हूं इसलिए आया? नहीं, कैलकुलेशन किया है ना. तो यहां कितना आ रहा था रे? यहां कितना आ रहा है? यानी कि यू हैव टू कॉम्बिनेशन अवेलेबल गिविंग यू द लीस्ट कॉस्ट. आर वी क्लियर? तो इन दिस वन क्वेश्चन वी डिड टू स्पेशल टाइप्स. व्हाट टू टाइप्स वी डिड स्पेशल? अनबैलेंस्ड एंड ऑल्ट ऑप्टिमा. दोनों एक ही में कर लिया हम लोगों ने. आर वी क्लियर विद दिस? एनी डाउट एनीवन? चलो कॉपी करो. विल गो टू नेक्स्ट सम. कॉपी कर लिया ये कि फोटो खींचने का इसका? यू वांट टेक अ फोटो ऑफ दिस? चलो नेक्स्ट लेक्चर से ना आई विल गिव इट टू यू ऑन योर ग्रुप. डायरेक्ट स्क्रीनशॉट फोन पे आ जाएगा आपके. सर हाउ विल आई डू इट? आई विल लॉग इन टू माई व्हाट्सएप हियर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू यू राइट अवे. ठीक है? तो आपके स्क्रीन पे आ जाया करेगा. टेंशन खत्म. ओके? बट अभी समझ में आया फोटो किसको फोटो लेने का इसका? तो आगे बढ़ेंगे. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस इज ओवर. अभी आएगा आपका सेम 6 का एग्जाम. पास होने का है ना. चलो सब नंबर 3 करो. ये 2 था ना. अच्छा, जिसको फोटो खींचने का उन लोग के लिए स्टार्टिंग से ये पहला फोटो आएगा. दिस विल बी योर फर्स्ट फोटो. दिस सम 15 मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा ये सम. क्लियर? ये फोटो खींचा फोटो. चलो नेक्स्ट फोटो. खींच लिया फोटो. नेक्स्ट फोटो. लास्ट फोटो. डन. क्वेश्चन 3 स्टार्ट. क्वेश्चन 3 पेज 14. क्या हुआ बोलो? नो. हु सेड दैट? रीड द क्वेश्चन ना. Read the question. There are 3 plants A, B, C. Keep quiet.
with capacity of 1200, 800, 2000 units. They supply to 4 warehouses PQRS with demand of 600, 500, 1400, 500 units. Find IFS by VAM and optimal solution by modified distribution method. What's the first step? Calculate capacity of ABC. $1,200, 800, 2000, 4000 आया. डिमांड PQRS 600, 500, 1400, 500, 3000. लो, सप्लाई इक्वल है क्या डिमांड के? कम क्या है? व्हाट इज लेस? व्हाट इज लेस? डिमांड इज लेस. तो मेक डमी डिमांड. सर वाई टी? अरे आई नो द अल्फाबेट्स, दैट्स वाई. व्हाट डू यू गेट आफ्टर एस? अरे अल्फाबेटिकली व्हाट इज आफ्टर एस? टी ना. यू डोंट लाइक टी, यू कैन राइट कॉफी हियर, चलेगा. यू कैन राइट डमी हियर, वो भी चलेगा. जो मन में आए वो लिखो, नाम पे मत जाओ. आर वी क्लियर? तो ये आपका क्या, यहां पे लिखो डिमांड नॉट इक्वल टू कैपेसिटी, देयरफॉर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड. Yes, but initially what was it? We balanced it, but what was the original problem? Unbalanced, ना? वो लिख देने का, just to show it, just to inform the examiner that you have made a dummy. It's just a way of informing. Are we clear? Don't get confused. Okay, earlier the problem was unbalanced and I made it balanced. समझे? Confusion मत लिखो. Don't write this. चलेगा. If you're getting confused, don't write this. It is just a way of informing the examiner that you balanced it. The initial original problem was unbalanced. Are we clear? What's the next thing? IFS by, और यहां वैम वाट लगाने वाला आपकी, ध्यान दे करना. पेनल्टी पे पेनल्टी आएगा, पेनल्टी है पेनल्टी आएगा, पेनल्टी है पेनल्टी. आपको लगेगा कब खत्म होएगा ये? देखो इधर चलो, और घर पे भी जाने का है, 12 बजने वाले हैं. घर जाके बहुत काम है अपने को, है ना? ओके, 40, 30, 70, 50, 80, 40, 20, 40, 70, 50, 80, 40. डमी. कैपेसिटी कितना है? 1200, 800, 2000. और यहां कितना है? 600, 500, 1400, 500, 1000. चलो देखो इधर, 0 and 20 कितना आएगा? 0 and 30, 0 and 40, 40 30, 40 50, 20 40, 50 40, 0 0. Hey, what is highest?
lowest cost 0, you can allocate 1000, करेक्ट. देन ये कैंसिल हो जाएगा. टाइम नहीं है तो यहां देखते रहो, लिखो मत, बाद में फोटो खींच लेना इसका. 2050, 2040, बाद में 3040, बाद में 4040, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, करेक्ट. सेम ही रहेगा ना, कुछ कैंसिलेशन तो हुआ नहीं है इधर. 2020 टाई, बोर्ड पे देखो, 2020 टाई, this 20, this lowest cost, this 20, this lowest cost, you land up in the same cell, doesn't make a difference, you select this or this. दिखने में टाई है बट एक्चुअली में टाई है नहीं, you land up in the same cell यार. yes or no? तो आई एम सिलेक्टिंग दिस. क्या आएगा बताओ? 1200, 200, 0, cancel, correct. Then again penalties, 40 30 10, 40 40 0. ओए now cancel हो गया है वो. 70 30, 80 40, 70 40, 80 40, cancel. ओए 3 3 40 है देखो, 1 2 3, this 40 30, this 40 40, this 40 40. तो दिस इज द लीस्ट कॉस्ट ना. याद आया रूल ऑफ टाई? आज ही बताया था रूल ऑफ टाई. एज पर रूल ऑफ टाई ये दोनों में टाई, तीनों में टाई है, बट इसका लीस्ट कॉस्ट 30 है, इसका लीस्ट कॉस्ट 40 है, इसका लीस्ट कॉस्ट 40 है. तो विच इज द लीस्ट आउट ऑफ ऑल दीज 30? तो विल सेलेक्ट दिस. You can allocate how many? 600. Correct. Cancel. Again penalties. ये तो cancel था. 80 40 40, 40 40 0, 80 40 40, 70 40 30, 80 40 40. ओए 40 40 40 टाई. दिस 40 40, दिस 40 40, दिस 40 40, यहां भी टाई. वो भी 3 3 टाई है, 2 भी नहीं, 3 3 टाई है. तो लुक एट पॉसिबल एलोकेशन हियर 200, पॉसिबल एलोकेशन हियर 500, पॉसिबल एलोकेशन हियर 500. सो दिस 40 लूजेस. इन दोनों में सब जगह टाई है. सिलेक्ट एनी वन. कॉस्ट पेनल्टी में टाई है, कॉस्ट में टाई है, एलोकेशन में टाई है. यू कैन सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज टू, बट दिस हैज लॉस्ट. व्हाई इट हैज लॉस्ट? लोअर यूनिट्स. आर वी क्लियर? तो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन. वंस यू सिलेक्ट दिस इट बिकम्स व्हाट? 500. दिस इज 0, दिस इज 500. ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया. अभी पेनल्टी आएगा, मेरे कर्मचारी आएंगे, है ना? पेनल्टी आएगा. क्यों आएगा बताओ? बी और सी 2 रो है और आर एस 2 कॉलम है, तो पेनल्टी आएगा. यहां देखो कैसे आएगा. 40 एंड 30, करेक्ट. एंड देन 30 एंड 40, ये कैंसल्ड है. 40 40 टाई है. दिस 40 लोएस्ट कॉस्ट 40, दिस 40 लोएस्ट कॉस्ट 40. यहां पे पॉसिबल एलोकेशन 200, यहां पर 500. तो दिस विंस. विल सिलेक्ट दिस 500 0 0. 2 जगह 0 हो गया, दोनों कैंसल्ड. अब ये रह गया अकेला खड़ा हुआ, आखिरी खिलाड़ी. बात बराबर है कि नहीं है? तो यहां कितना आएगा? 200. ये भी 0 और ये भी 0, करेक्ट. समझ में आया? वैम इज ओवर बट नॉट द मिजरी. इट हैज जस्ट स्टार्टेड. यहां ध्यान दो, लिटरली इट हैज जस्ट स्टार्टेड. इसके बाद नेटवर्क आएगा, नेटवर्क. वहां पे क्रैशिंग करेंगे, वहां अपना सर पकड़ लोगे कि मेरा क्रैशिंग कैसे करूं मैं, माई ब्रेन इज क्रैशिंग, ऐसा बोलोगे. फिर वहां पे वो अगर आपको देगा नहीं सेटिस्फैक्शन, इफ यू डोंट गेट इनफ हाई, वी हैव एलपीपी इन द एंड.
समझे क्या? टू गिव द अल्टीमेट हाई टू यू गाइज इन ओआर. यहां देखो, चलो जाने दो, विल गो बैक देयर, वहां बाद में जाएंगे. अभी के लिए क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर नाउ? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, डिजेनरेसी. तो टेस्ट फॉर डिजेनरेसी. Count actual allocations. Count 6. Count m plus n minus 1. 3 plus 5 minus 1. डमी भी काउंट करेंगे ना? याद है लास्ट सम कितना आता है बताओ? लो, लग गई वाट. दे आर नॉट इक्वल, ये लेस है ना, लग गई ना वाट. Therefore what? Therefore there is correct, there is degeneracy. ठीक है क्या? चलो अभी गाड़ी यहीं पर रोकते हैं, टायर पंचर हो जाएगा नहीं तो आपका. ठीक है, चलो इसका आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. गिव मी अ मोमेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच for all your patience.